Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School. So now today we discuss chapter 5th, laws of motion, and today's topics are impulse of force. Okay, so definition of impulse, and to prove that impulse is equal to the change in momentum, and some examples of impulse. Okay, so now we discuss about impulse. Okay, impulse. In previous lecture we have already discussed Newton's second law, and according to Newton's second law we know that the change of momentum is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Okay, so we know that force is equal to the rate of change of momentum. Okay, so from here del P is equal to the force into del T. Okay, okay, so here the product of force and time interval is called the impulse of force. Okay, so here definition of impulse. Definition of impulse: product of force and time interval is called the product of force and time interval is called the impulse of force. Okay, this is the definition of impulse. But we know that del P is a change in momentum. So in next topic we discussed impulse of force is equal to the change in momentum. To prove that, okay, to prove the impulse of force is equal to the change in momentum. Okay, so here, so impulse is a vector quantity. Impulse is a vector quantity. Okay, and direction of impulse is a direction of the force. Okay, here and units and dimensional formula. Unit and dimensional formula of impulse. Okay, so unit of impulse, SI unit of impulse. SI unit of impulse. So we know that SI unit of force is a Newton. So we write here Newton into time. So time unit of time, SI unit of time is a second. So Newton into second. Okay, this is the SI unit of impulse. And CGS unit of impulse. So here CGS unit of force is a dyne into second. So we write here second. Dyne into second. Okay, so now we discuss dimensional formula of impulse. Dimensional formula. Okay, we know that dimensional formula of force is a MLT minus 2. We have discussed about dimensional formula in previous lecture, in very previous lecture, and dimensional formula of T is a T. So dimensional formula of impulse is MLT
minus 2 and plus 1 is minus 1, mLT minus 1. Okay. So next topic is here we see that del P is equal to F into del T, and about definition of impulse we know that product of force and time interval is called the impulse of force. So in next topic we have we discuss to prove impulse of force is equal to the change in momentum. Okay. To prove that change in momentum is equal to the impulse of force. Let a constant force F applied on an object of mass m for time interval del t, for time interval del t. Okay, and which change its velocity by del v. Okay, so let a constant force F applied on an object of mass m for time interval del t which change its velocity by del v. हमने फोर्स F अप्लाई किया एक m मास के ऑब्जेक्ट पे फॉर del t टाइम इंटरवल के लिए, एंड जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज होके del v हो जाती है. ओके, सो देन वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ impulse of force, we know that impulse of force is a F into time interval. Okay, this is the equation 1. But according to Newton's second law, we know that Newton's second law, we know that force is equal to the rate of change of momentum. Okay, so here this is the equation second. Now we put the value of force from equation second in equation 1. Put the value of force, value of F from equation second in equation 1. Okay, so here impulse of force is equal to the values of force is del P upon del T. So we write here del P upon del T in place of F. Okay, so del P upon del T into del T. So here del T cancel. So impulse of force is equal to del P. Okay, means impulse of force is equal to the change in momentum. Impulse of force is equal to change in momentum. Is proved. Okay, so ये था टॉपिक जिसे हमने प्रूव किया कि इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम बोथ आर इक्वल. ओके, so now we discuss some examples of impulse. Okay, so now the very first topic example of impulse
Give examples of impulse. First is while catching a ball, the cricketer withdraws his hand. The cricketer withdraws his hands. And the second example, when the glass vessels fall on hard floor, they break. But they do not break. When they fall on a carpet or sand. Okay. And next example is when in a circus, the artist often jumps. On a net or thick cushions. So these are the some examples of impulse. So now we discuss these examples. So very first is while catching a ball, the cricketer withdraws his hand. जब भी बॉल कैच करते हैं then जो क्रिकेटर्स है वो अपने हैंड को थोड़ा सा विड्रॉ कर लेता है, पीछे की तरफ ले जाता है. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वी नो दैट impulse is equal to the force into change in time interval. ओके. सो जैसे ही कोई भी क्रिकेटर बॉल को कैच करने की बॉल उसके पास आती है, देन वो कैच करने के लिए क्या करता है, अपने हैंड्स को इस तरह से पीछे विड्रॉ करता है. पीछे विड्रॉ करने से क्या होता है, इतने टाइमिंग में उसका जो बॉल के स्टॉप होने की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाती है. मीन्स अगर वो यहाँ से कैच करता देन बॉल यहीं पे स्टॉप हो जाती, बट उसने अपने हैंड पीछे कर लिए, विड्रॉ कर लिए, देन बॉल के स्टॉप होने की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो गई. मीन्स जो चेंज इन टाइम इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ही चेंज इन टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा, इसका मीन्स क्या है, जो उसमें फोर्स है बॉल का वो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज होगा क्या, चेंज इंटरवल, तो डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज फोर्स. तो जो बॉल में फोर्स है उस टाइमिंग में, उस जो टाइमिंग इंटरवल ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है उस टाइम में बॉल का फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स बॉल हैंड को इंजर्ड नहीं कर पाएगी. लेकिन अगर हम विड्रॉ नहीं करेंगे हैंड को, अगर हम यहाँ से ही कोशिश करेंगे कि हम बॉल को स्टॉप कर दें, देन इस टाइमिंग में बॉल स्टॉप हो जाएगी. मीन्स जो हमारा इंटरवल ऑफ टाइम है वो लेस रहेगा. जब इंटरवल ऑफ लेस रहेगा देन फोर्स क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा. मीन्स बॉल हमें इंजर्ड कर सकती है. ओके. तो यही कंसेप्ट है इम्पल्स का कि विड्रॉ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि चेंज ऑफ टाइम इंटरवल से इंक्रीज हो जाता है, बॉल के स्टॉप होने का टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाता है, फिर फोर्स उसमें लेस हो जाता है. ओके. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज व्हेन द ग्लास वेजल्स फॉल ऑन हार्ड फ्लोर दे ब्रेक. हार्ड फ्लोर में ग्लास वेजल गिरता है देन वो ब्रेक हो जाता है. बट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे फॉल ऑन कारपेट और सैंड. बट जैसे ही वो किसी कारपेट और सैंड के ऊपर गिरता है वो ब्रेक नहीं होता है. सो व्हाट द रीजन? सो सेम हियर, इम्पल्स वी नो दैट इम्पल्स इज अ फोर्स इनटू चेंज इन इंटरवल. तो जैसे ही कोई ग्लास वेजल किसी हार्ड फ्लोर पे गिरता है, हार्ड फ्लोर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें वो प्रेस नहीं होता, उसमें कंप्रेशन, उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते. तो उसमें कंप्रेस नहीं होता है, मीन्स उसमें जो चेंज इन इंटरवल है
वो इंक्रीज नहीं होता, मीन्स जैसे ही वो स्ट्राइक करता है उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो वेजल है वो स्टॉप हो जाता है. ओके, मीन्स चेंज इन इंटरवल लेस रहता है. चेंज इन इंटरवल लेस रहता है मीन्स फोर्स क्या रहता है, मोर रहता है. जब फोर्स मोर रहता है मीन्स ये ब्रेक हो जाता है. बट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे फॉल ऑन कारपेट और सैंड. जैसे ही वो वेजल सैंड के ऊपर गिरता है तो सैंड के ऊपर गिरने से क्या होता है, सैंड थोड़ा सा कंप्रेस हो जाती है. कंप्रेस हो जाने से जो वेजल का स्टॉप होने का जो टाइमिंग है, चेंज इन इंटरवल है, वो इंक्रीज हो जाता है. जब टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाता है मीन्स जिस मोशन से, जिस मूविंग करते हुए जिस फोर्स के साथ वो आ रहा है अब वेजल, उसका फोर्स उसमें लेस हो जाता है. और जब फोर्स लेस हो जाता है मीन्स वो ब्रेक नहीं हो पाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इन अ सर्कस द आर्टिस्ट ऑफन जम्प्स ऑन अ नेट और थिक कुशन्स. सर्कस में ऑब्जर्व किया होगा जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी नेट या कुशन्स के ऊपर जंप करते हैं ऑफन. ओके, सो व्हाट द रीजन? सो सेम हियर वी नो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डेल टी. ओके, तो जैसे ही आर्टिस्ट किसी थिक कुशन्स के ऊपर जंप करते हैं या फिर नेट के ऊपर जंप करते हैं, देन वो कुशन्स और जंप क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो कंप्रेस हो जाते हैं, नीचे की तरफ दब जाते हैं. अगर ये हमारे पास कुशन है, ओके, ये कुशन है, जैसे ही इसमें ऑब्जेक्ट आर्टिस्ट इसमें जंप करते हैं ये कंप्रेस्ड होके क्या हो जाता है, इतना ये कंप्रेस्ड हो गया. ओके, ये इतना कंप्रेस्ड हो जाने से इतना इसमें डेल टी टाइमिंग में इंटरवल, इसका डेल टी जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. जब ये इंक्रीज हो जाएगा मीन्स यहाँ तक आने में फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. फोर्स डिक्रीज हो जाएगा मीन्स जो आर्टिस्ट है वो इंजर्ड नहीं हो पाएगा. अगर हम इसकी जगह कोई हार्ड सरफेस लेंगे या नॉर्मल फ्लोर पे वो जंप करेगा, देन क्या होगा, ये डेल टी टाइमिंग जो इंक्रीज हो रहा है कंप्रेस नहीं हो पाएगा हार्ड फ्लोर, और वो डेल टी टाइमिंग लेस रहेगा. और जब वो लेस रहेगा देन जो फोर्स है वो मोर रहेगा और जिससे जो आर्टिस्ट है वो इंजर्ड हो सकता है. ओके, तो ये कंसेप्ट है इम्पल्स का. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इम्पल्स क्या है एंड एग्जाम्पल्स क्या है इम्पल्स के. ओके, एंड ये डेली लाइफ में किस तरह से इम्पल्स वर्क करता है. सो थैंक यू.